لیکن کہیں گے اسی شرط پہ جب آپ ہماری مانیں گے وانتا علم بہادر اے محبوب اس شہر کی قسم جس میں آپ جلوہ فرما جن کے ذروں نے آپ کے قدم ناز کو چھوما ہے. یہ شہر کون سا شہر ہے؟ مکہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ابھی کسی نے پڑھا ہے، سب سے پہلے ایک لڑکا یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ پڑھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ دیکھو. رکنے شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. ایک بات یہ سن لو آپ، دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا وہ کون سا گھر ہے معلوم ہے؟ یہ دنیا اللہ نے بنائی. دنیا میں دنیا اسٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے بننا؟ سب سے پہلا گھر جہاں زمین بنی، گھر بنا، وہ اسٹارٹنگ کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اول بیت وضع للناس ببکہ. سبحان اللہ. سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ. ذرا زور سے بولو، پہلا گھر کون سا گھر ہے؟ یہ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بڑی قسمت والے ہیں نا. ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ سب اس دیار کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ جو اللہ نے بنایا. اس کی تعمیر کیسے ہوئی اور کس کے ذریعے سے ہوئی، کیوں ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حکم آیا خانہ کعبہ بناؤ. ویسے تو بہت پہلے سے اس کی بنیاد قائم تھی، لیکن آندھی طوفان اور یہ وہ سب میں مٹ چکی تھی نشانیاں، تو نشان کو متعین کیا گیا. اس کے بعد اینٹا یا پتھر وغیرہ ڈھونڈ کر کے حضرت اسماعیل لے کے آتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں اپنا کام کرتے، یہ چنائی کا کام کرتے. تو چنائی کرتے کرتے بات سمجھیے گا، جب دیوار اٹھانے لگے تو دیوار زمین سے اٹھانا شروع کیا، یہاں پہنچے یہاں پہنچے یہاں پہنچے، اوپر ہی تو جائیں گی دیوار جب چنائی کرتے جائیں گے. یہاں پہنچے یہاں پہنچے یہاں پہنچے، جب سر تک پہنچا. اب یہ ہوا جب سر تک دیوار پہنچ گئی، اب اس کے اوپر تو جانے کے لیے ہمارے یہاں کا جو مستری ہے وہ کچھ نہ کچھ پائپ وغیرہ باندھتا ہے نا، لیکن اب وہاں جب اوپر بنانا تھا تو کیسے کیا کرتے؟ نزہۃ القاری میں اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب چونکہ چونکہ دیوار قد آدم تک پہنچی اور اب آگے کی چنائی دشوار ہوئی، تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے دیوار کو چونتے ہوئے اوپر لے جاتے، ایک پتھر تھا اسی پہ کھڑے ہو کر کے وہ چنائی کر رہے تھے. جس طریقے سے دیوار اوپر جاتی تو پتھر بھی اوپر اٹھتا ہوا چلا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتھر بھی اٹھتا ہوا چلا جاتا. خالی اتنی ہی نہیں، میں نے تو اور بھی کتابوں میں یہ دیکھا ہے کہ مان لو دیوار. اچھا ایک بات بتاؤ آپ، ایسے گولی کے کھمبا بناوٹ ہوئے تو مگر دیوار کا ہو کہ کھمبا لگاؤ پھر ہو والا ایسے لگایا، کون روا ڈالا تھا مسلوا کیا بولتے ہیں اسے؟ بیم پلر. ٹھیک ہے، تو اب مسالہ ڈالے وہ تیار ہو گیا، کھول دیا، اسے دیوار بولو گے یا پلر بولو گے؟ دیوار بولو گے یا کھمبا بولو گے؟ کھمبا ہی کہا جائے گا نا. دیوار لمبی ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک لمٹ ہے. اتنا لمبا ہو تو دیوار بولیں گے، اتنا ہو تو کھمبا بولیں گے. ایک بات بتاؤ، یہ گلاس میں پانی لے کے یہ گلاسوا ہے کا بالٹی کا ہے کہاں؟ اٹھا دو حضرت جی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ گلاس بولتے ہیں نا. اس کو پتلی کیوں نہیں بولتے؟ واضح نے جو وضع کیا ہے، ایک لمٹ، ایک حد ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک اصول ہے. اس کو نہ پتلی بول سکتے ہو، نہ پتلی کو گلاس بول سکتے ہو. جہاں
तो दीवार मुकम्मल हुई, खाने काबा की तामीर हो रही है। इस तरीके से खाने काबा को उन्होंने बनाया, खाने काबा को बनाया और खाने काबा की तामीर मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। ये 10 नाय लाया है जानबूझ के, ये 10 यका देखे का कर, से ज्यादा कोई अपने कहीं है दूसरे ये खाली आंख नहीं रहो, सामने की देखी की बात है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, आपको जज़ाए खैर दे और तुम्हारे बाद जे आवे वाला है वो लोग जज़ाए खैर अता फरमाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर और बोलते रहेंगे तो आप सुनते रहोगे, चंद बातें आप सुन लीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर कर दी, काबा तैयार हो गया, काबा तैयार हो गया बन करके। अब दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए मेरे मौला मैंने तेरा घर तो बना दिया है, अब घर बसाने वाला एक रसूल भेज दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक रसूल भेज दे। वही काबा जहां इब्राहिम ने बनाया, उसके बाद दुआ कर रहे हैं, घर तो बन गया, मौला घर का बसना भी चाहिए, घर बन गया है, घर में रहने वाला भी चाहिए, घर का बसना भी चाहिए। आवाज आई रहमत इलाही की, ए इब्राहिम घबरा नहीं, मेरा घर तूने बना दिया, अब इसका बसाने वाला तेरे बेटे इस्माइल, उन्हीं के नस्ल से आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह भेजने वाला हूँ, वही बसाएंगे खाने काबा को। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, खाने काबा की तामीर हो गई। अब जरा देखो, एक आवाज दिया गया, ए इब्राहिम जब काबा तुमने बना दिया है तो जरा सा पुकारो लोगों को कि लोग आए हज करने के लिए। सुन रहे हो आप? हज किसका होता है आप बताओ? हज किसका होता है? काबे ही का ना, इसका हज होता है काबे का हज। तो काबा तो बन गया, अब तैयार हो गया, इब्राहिम जब तैयार हो गया तो जबल अबू कुबैस पर चढ़ जाओ, और चढ़ने के बाद आवाज दो कि ए लोगों, दुनिया के लोगों, खाली मक्का नहीं, मदीना नहीं, ए दुनिया के लोगों आओ, घर तैयार हो गया अल्लाह का, इसका हज करने के लिए आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला ये जबले अबू कुबैस पर चढ़ करके क्या ताना दिए, हम चिल्लात की पूरे दुनिया में मोदिया पहुंच गए। ना माइक्रोफोन, ना मशीनरी सिस्टम और ना और भी कोई चीज उस वक्त इसका वजूद, खाली आवाज, इंसान जो बोले वही, ना माइक है, ना आयरन है, ना मशीन है, ना इंटरनेट सिस्टम है, ना और कोई सिस्टम है जिसके जरिए से आवाज को बाहर पहुंचाई जाए। इन्होंने कहा, मेरे मौला तू ये कहना है सारी दुनिया वालों को आवाज दे, अगर मक्के वालों को बोलता तो थोड़ा सा तेज चिल्ला देता, तब भी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन कुछ तो पहुंचा दी। तू कह रहा है सारी दुनिया वालों को बुलाओ, एक अकेला मैं आवाज देने वाला, और कोई मशीन नहीं है, सबकी आवाज कहाँ, सब तक आवाज कैसे पहुंचेगी? रहमत ने पुकारा, तू बुला तो सही, पुकारना तेरा काम है, आवाज पहुंचा देना मेरा काम है, आवाज पहुंचा देना मेरा काम है। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के बंदो आओ हज करने के लिए, नोट कर लो जुमले को, उलमाए किराम भी तवज्जो दे, मौला की इज्जत की कसम, जो माँ के पेट में बच्चा मौजूद था, जब उन्होंने आवाज दिया आओ हज करने के लिए, माँ के पेट में बच्चा बोला, लब्बैक या इब्राहिम, हम आ रहे हैं, तुम्हारी आवाज पे हाजिर है। जिसने एक बार जवाब दिया वो एक बार हज करेगा, जो 2 बार जवाब दिया वो 2 बार हज करेगा, जो 10 बार जवाब दिया वो 10 बार हज करेगा, और जिसने जवाब भी नहीं दिया वो चाहे जितना तैयारी करिए वो जा ही नहीं, पर ये कुछ ना कुछ हो ही जाएगी। तो मेटर यही है जाने का, जो जवाब दिया है उनके बातों का वही हज करने जाएगा। आज मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के में जबल अबू कुबैस पर ये ऐलान किया था, ए लोगों आओ अल्लाह का हज करने के लिए, तो
में चिल्लाए, नबी की मोहब्बत में उठाए, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुबह तैयारी भी करनी है, इनको जाना भी है, इसलिए प्रोग्राम को बहुत ज्यादा लंबा खींचना गैर मुनासिब है। क्या राय? अच्छा अच्छा ठीक है। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है तफसीर रूहुल बयान, उसके अंदर लिखा हुआ है, अच्छा मैंने जुमा में बताया था जो हाजी हज करने जाए और लौट के वापस आके उससे अच्छा बन जाए तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। समझ रहे आप? हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए। जब तो भिखारी रोड पे थाली लेकर के बैठ के भीख मांग रहा था और देने मौलाना शमसुल्लाह साहब कहाँ गए? हाँ माशाल्लाह ये पुराने साथी है। हाँ अगर पूरे साथ में गए हो ऐसे मुड़वा झुकाए बैठा रहा हो तो कैसे काम चलेगा? तो भिखारी एक लड़का थाली रखकर के सामने भीख मांग रहा था, वो अंधा था, अंधा था लड़का, बैठा हुआ था छोटा, अपना जैसे मांगते हैं दे दो दे दो, जब आप 1 रुपया डाल देते हो तो वही में रखा 15-20 रुपया में तो लतीफ साहब ये जने आए कहीं ये करे तो गिलगाते रहे, बस वही पैसे 1 रुपया चुरावे लागे समन्वय खड़ा बजाय दिए के 2 रुपया में से निकालने लगे। अंदाजा लगे इस लड़के को, इसने हाथ पकड़ लिया, कहा अरे हाजी साहब ऐसा न करो। इसने क्या कहा? ए भैया क्या हो चुरावत है ना, तो ऐसा नहीं बोला हाजी साहब, हाजी हो कैसे करो मैं पैसा वहीं धरी कहीं बताओ तोरे बिगाड़े रहे तुम्हें कैसे पता कि हम हज किया और दिखावे करता वो ये तो अलग चीज है, ये कैसे जान गए कि मैं हाजी हूँ? जब वो लड़का बोला ये इतना नीक काम हाजी के अलावा और क्या कहीं ये चोरी अंधेरे के सामने से कोई हाजी ही करेगा। तो इस तरीके से बातें मशहूर हो गई है। अल्लामा शेखुल इस्लाम जो वक्त का मुदक्किक है, इमामुल मंतिक है, नक़्ल अक़ल का बेताज बादशाह अपने वक्त का, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अफसाने के तौर पर ये लतीफ़ा उन्होंने लिखा है, जो मैंने शायद आपको किताब बताई थी, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने अफसाने के तौर पर कि एक लतीफ़ा कहा हुआ कि इस तरह की बातें लोगों के अंदर फैलने लगी है। ए मुसलमानों, हमारी दुआ ये है, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बीच से जा रहे हैं दयारे रसूल को देखने के लिए, हमारी दुआ है सब आमीन कहो। ये जा रहे हैं जैसे जब लौट के आए तब इनके अंदर नेकियों की झलक दिखाई पड़े, अल्लाह वाली बातें दिखाई पड़े, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमा ले, आमीन बोलो। हाँ अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में चिल्लाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। चंद बातें वो तफसीर रूहुल बयान की बात कर रहा था, आखिरी बात सुन रही। ये बताओ कि खाने काबा अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, जब कुल दुनिया में करें तो लोग रेडी का है तो खाने काबा किबला जो है, अच्छा काबा में जाओ यहाँ नमाज पढ़ते हो तो मुंह किधर करते हो आप? किबला की तरफ ना। और जब काबा के अंदर जाके नमाज पढ़ो तब तो तुम ये मुँह करो। मेटर तो ये है किबला रुख शर्त है, इस्तिक़बाल किबला शर्त है नमाज में, और जो काबे के अंदर पहुंच गया तो पूर्व करिए पश्चिम करिए कौनी ओर करिए, भैया उधर कहाँ किबला है, काबे में खड़ा हो। उस नमाज के बारे में क्या ख्याल है? हाय 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 जरा देखिए, आंखों का किबला, आंखों का किबला। एक बात बताऊं, नमाज कैसे पढ़ते? नियत की मैंने फला 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 अल्लाहु अकबर, यूं नियत बांधते हैं ना, यूं नियत बांधा। ये तलबा बैठे हैं, ये जानते हैं ये ज़हरुल यद है और ये बतनुल यद है।
हाँ ठीक है, ये बतनूलियत है जिसमें हावी का वो सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर को ये आप नहीं समझोगे, ये जानते हैं इस बात को। ठीक है, मकान की तारीफ। हाँ तो अभी ऐसे पकड़ा जिसमें हावी का वो सतह बाती जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर। ठीक ठीक है ना, यूं पकड़ा। अब जब यूं पकड़ा मैंने हाथ को और ऐसे खड़ा हुआ तो बताइए ये किधर हुआ, किबला की तरफ हुआ कि नहीं हुआ? ये किबले की तरफ हुआ कि ऐसे तो खड़े होते हो ऐसे? अगर आपका मुंह किबले की तरफ है तो ये हथेली भी किबले की तरफ है कि नहीं है? काहे ऐसे हाथ बांधते हो, ऐसे काहे ने बांधो? ठीक है, ऐसे क्यों नहीं बांधते? ऐसे तो धई सकत रहो, का करे रहा, लाठी थोड़ा चलावे रहा, हथवे तो धरे रहा। हाँ ऐसे रख करके नमाज पढ़ते, मगर ऐसे क्यों पढ़ते हैं? वजह ये है, ये हाथ का चेहरा है, ये हाथ का पेट है, और जैसे ये चेहरे का इस्तिकबाल किबला है, ऐसे हाथ का भी किबला काबा है, आंखों का किबला काबा है, ज़बान का किबला काबा है, पलकों का किबला काबा है, पाँव का किबला काबा है, उंगलियों का किबला काबा है, सीने का किबला काबा है, पेट का किबला काबा है। एक दिल है, हमने कहा ए दिल जरा तू बता तेरा किबला कहाँ है? आवाज आई, मेरा किबला काबा नहीं, मेरा किबला मदीना है। हमारे आगे लाल का रोज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अच्छा ये बताओ, दुनिया में काबा एक है कि दो? एक ही है ना? हाँ, वही हज होता है, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे जगह मक्का। ठीक, तफसीर रूहुल बयान में देख रहा था, किताबुल मनासिक का मुसन्निफ मनासिक पे लिखता है कि किबला एक नहीं है। वो कहते हैं कि किबला तो 15 है। कैठू है किबला? मैं जब देखा तो पहले मैं भी हैरान हो गया, ये दादा हजरत तो ये बताई ना, लतीफ साहब ये 15,000 झूठ ले आए होते हो। चलो ठीक है, आप तहकीक किए, ज्यादा किताबें पढ़े, दो ले आए होते 15। तो हमने कहा खाली दावे से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा 15 कहाँ कहाँ है। ये खुद तो मक्के में, तो बोले जहाँ काबा है मक्के के अंदर, उसी के नीचे जमीन 7 तबक है। पहली जमीन के नीचे उसी निशाने पर एक किबला है, और दूसरी तबक के नीचे जमीन में उसी निशाने पर दूसरा किबला है, तीसरी तबक के नीचे जमीन में उसी निशाने पर तीसरा किबला है। ऐसे 7 तबक जमीन, 7 तबक में उसी निशाने पर जहाँ काबा है मक्के में, उसी निशाने पर एक एक किबला नीचे है। तो 7 ये हो गए, और ऊपर चले जाइए 7 आसमानों के, आसमान भी 7 है। पहले आसमान पर उसी काबे के निशाने पर एक किबला है, दूसरे आसमान पर एक किबला है, तीसरे आसमान पर एक किबला है, चौथे आसमान पर एक किबला है। तो 7 आसमान पे 7 किबला ऊपर और 7 जमीन नीचे, 7 किबला नीचे, 7 पूरा चौथा, और एक बीचम जहां आप जाते। जरा जोर से बोलो, कुल कितना हो गया? 15 किबला हो गया। ये रूहुल बयान के हवाले से महक्किक लिखता है, ये 15 किबला हो गया। मैं हैरान हुआ, अरे आप नए महक्किक निकले हो, आपने लिख दिया 15 किबला है। हम जिसे जानते हैं जरा चल के उनसे भी पूछ रहे। गया बरेली आला हजरत की बारगाह में, ए इमाम आपका कलम बड़ा मोहतात है, आपका कलम बड़ा मोहतात है, आपका कलम बड़ा मजबूत है। ए इमाम आप जब लिखते हो तो दलाइल के दरिया बहा देते हो, आप बोलो। तफसीर रूहुल बयान का मुसन्निफ लिखता है कि किबला एक नहीं 15 है। आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? आपका क्या ख्याल है? आला हजरत बोले, मेरे
بھی یاد کرنا پڑے گا. سب 15 کہتے تھے, ایک کہتے تھے, ایک نے 15 کیا, آپ نے 16 کیا. جب چھکا ہوا آپ بتا دو. تو اعلیٰ حضرت بولے 15 وہ ہے جو محقق نے بتایا تجھے, جو تو نے جانا, ایک مجھ سے جان لے. ہم نے کہا وہ ایک کیا, بولے چلا جا مدینہ اور یہ پڑھ, حاجیوں آؤ, حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. نبی کا روزہ بھی ہمارے یہاں ایک قبلہ کعبہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے, نبی کی محبت میں جلائے, نبی کی محبت میں اٹھائے. بہت سن لیا, بہت باتیں کر لی, صبح تیاری بھی کرنا ہے, تکبیر ہو گئی, سارے علماء کی باتیں ہو گئی. اب صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے. استغفر اللہ, ایک بج چکے ہیں یار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کھڑے ہو کر سلام